Friends, once again welcome on S Academy. Today we are discussing about Introduction to Power Electronics. दोस्तों, एक बार फिर आपका S Academy पर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है Introduction to Power Electronics. Now, what is power electronics? What is what are the differences between power electronics and simple electronics? What are advantage and disadvantage of power electronics? And what are the applications of power electronics? This whole thing we are discussing here. So power electronics. Since power electronics is high power electronics, it is not a simple signal electronics, and this electronics is generally used in industry, and hence it is also known as industrial electronics. So power electronics and industrial electronics both are same. Power electronics belongs partly to power engineers and partly to electronics engineer. It means these electronics are related to both type of engineering. It is partly related to power engineers and partly related to electronics engineers. So power electronics, power engineers और electronics engineers दोनों से related है। ये partly power engineers और partly electronics engineers से related है। Power engineering is mainly concerned with generation, transmission, distribution, and utilization of electric energy at high efficiency. Power engineering is mainly concerned with generation, transmission, distribution and utilization of electric energy at high efficiency. So इस इंजीनियरिंग के अंदर हाई एफिशिएंसी पर पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो हाई एफिशिएंसी पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन हमको करना है, ट्रांसमिशन हमको करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है और इसको यूटिलाइज करना है। सो ये जो सारे फैक्टर्स पावर इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग is guided by distortion-less production, transmission, and reception of data and signals of very low power level of the order of a few watt or milliwatt without much consideration of the efficiency. So normal engineering के अंदर हमारा जो मेन एम है वो है लो पावर लेवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू वॉट और मिलीवॉट। सो लो पावर लेवल पर डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल्स को प्रोड्यूस करना है, ट्रांसमिट करना है एंड रिसीव करना है। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट एफिशिएंसी। तो यहां पर एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है। सो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डिस्टॉर्शन लेस प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा एंड सिग्नल ऑफ वेरी लो पावर लेवल। सो डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल को प्रोड्यूस करना है, ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है, वो हमारा मेन एम है। एफिशिएंसी का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। The apparatus associated with power engineering is based mainly on electromagnetic principles, whereas in electronics engineering
they are based on physical phenomena in vacuum, gases or vapors and semiconductors. So पावर इंजीनियरिंग के अंदर जो apparatus यूज होते हैं, they are mainly on electromagnetic principle. So electromagnetic principle के ऊपर बेस्ड हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो apparatus हैं, they are based on the phenomena in vacuum, gases and semiconductors. तो वैक्यूम, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर के अंदर जो फिनोमिना होते हैं, उन फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट कंसर्न्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स इनटू सिचुएशन दैट आर रेटेड एट पावर लेवल rather than signal levels. Power electronics is a subject that concerns the application of electronic principles into situations that are rated at power level rather than signal levels. So power electronics जो subject है, वो mainly electronic principles के जो applications हैं, जिनमें मेनली हमको पावर पर कंसंट्रेट करना है, सिग्नल पर कंसंट्रेशन हमारा नहीं होगा। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द apparatus and equipment working on the principle of electronics but rated at power level rather than signal level. So पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एपरेटस एंड इक्विपमेंट की जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, और यहां पर मेन फोकस हमारा पावर पर होता है, न कि सिग्नल पर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स is used in different areas. First is aerospace, next is commercial, third one industrial, fourth residential, fifth in the field of telecommunication, next one is in the field of transportation, and finally in utility system. से डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। फर्स्ट वन इज एरोस्पेस। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स is used in space shuttle power supplies. So स्पेस शटल के अंदर जो पावर सप्लाई हम यूज करेंगे, उस पावर सप्लाई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सैटेलाइट पावर सप्लाई। सो सैटेलाइट के जो भी पावर सप्लाई है, उन पावर सप्लाईज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम्स। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज यूज्ड इन advertising,
heating, in air conditioning, in central refrigeration, in computer and office equipment, uninterruptible power supplies, that is in UPS. It is also used in elevators, light dimmers and flashers. So ये सारे वो पार्ट थे जहां पर भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं. Next is industrial use of power electronics. So it is used in arc and industrial furnace, in blowers and fans, in pump and compressors. It is also used in industrial lasers, in transformer, in tape chargers, in rolling mills, in textile mills, also used in excavators, cement mills. Power electronics is also used in welding. Its next application is as a residential purpose. It is used in air conditioning, used in cooking, in lighting system, in space heating, refrigerators, electric door openers, dryers, fans. It is also used in personal computers, vacuum cleaners, washing and sieving machines, also in light dimmers. In food mixtures, power electronics is also used as a residential purpose. It is also used in electric blankets and in food warmer trays. Next application is in the field of telecommunication. So telecommunication में बैटरी चार्जर में और पावर सप्लाईज में इनमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है. If we discuss about transportation, then power electronics is used in battery charger, in electric locomotives, also in street cars and in trolley buses. It is also used in subways and in automotive electronics. Next use of power electronics
is in utility system. So it is used in high voltage DC transmission, excitation systems, static circuit breakers, in fans and boiler feed pumps. Also it is used as a supplementary energy system in solar and wind. Next one is advantage and disadvantage of power electronics. So पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारा अब हम ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. हाई एफिशिएंसी ड्यू टू लो लॉस इन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस. सो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हैं उनमें एनर्जी का लॉस कम होता है. सो हाई एफिशिएंसी से पावर हमारी ट्रांसमिट होती है. सो हाई एफिशिएंसी ड्यू टू लो लॉस इन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस. हाई रिलायबिलिटी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम. पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम की रिलायबिलिटी अधिक होती है. लॉन्ग लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी मूविंग पार्ट्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनकी लाइफ ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है. फास्ट डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर सिस्टम. इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर सिस्टम के कंपैरिजन में पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रेस्पॉन्स फास्ट है. तो जैसे ही आप सिग्नल भेजोगे या पावर भेजोगे, स्पीडली पावर दूसरे टर्मिनल पर हमको मिल जाएगी. स्मॉल साइज एंड लेस वेट रिजल्ट इन लेस फ्लोर स्पेस एंड देयरफॉर लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट. पावर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो डिवाइस यूज हो रही है उसकी साइज स्मॉल है, वेट इसका कम है और स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोर स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है. सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी रिड्यूस हो जाती है. मास प्रोडक्शन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज रिजल्टेड in lower cost of the converter equipment. पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज ज्यादा होने की वजह से इसका प्रोडक्शन मास लेवल पर हो रहा है, इसलिए इन कन्वर्टर इक्विपमेंट की कॉस्ट कम है. Now, besides these advantages, there are several disadvantages of power electronics. First disadvantage is power electronic converter circuit have a tendency to generate harmonics in the supply system as well as in the load circuit. So, supply system और लोड सर्किट के अंदर जिस पावर को हमने सेंड किया था, जिस पावर को हमने भेजा था, उस फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ दूसरी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल भी हमको मिलते हैं जो कि हार्मोनिक्स हैं.
So power electronic converter circuit have a tendency to generate harmonics in the supply system as well as in the load circuit. AC to DC and DC to AC converter operate at a low input power factor under certain operating conditions. Power electronics mainly हाई पावर पे वर्क कर रहा है, बट एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर्स ये लो इनपुट पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं, इसलिए इनको लो पावर पे बनाए रखने के लिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. So in order to avoid a low power factor, some special measures have to be adopted. So हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है. पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स हैव लो ओवरलोड कैपेसिटी. पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर या कंट्रोलर की ओवरलोड कैपेसिटी लो होती है. रीजनरेशन ऑफ पावर इज डिफिकल्ट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम. पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम में पावर को रीजनरेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है. नाउ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. For it, we required a control unit, also a digital unit, a power electronic circuit, and a load. Also, a feedback signal is also required in power electronic system. To start power electronic circuit, we need a main power source. So main power source provide the power to power electronic circuit. Now a command is given to control unit. कंट्रोल यूनिट को कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं. ये कमांड डिजिटल यूनिट को जाता है एंड देन इट गोज टू पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पावर सोर्स से पावर ले रहा है और कमांड को लोड को ट्रांसफर करता है. फीडबैक सिग्नल लोड और कंट्रोल यूनिट के बीच में सिग्नल बनाए रखता है. The output of a power electronic converter circuit depends on the requirement of the load. तो लोड की क्या रिक्वायरमेंट है, लोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, इफ द लोड इज अ डीसी मोटर, द कन्वर्टर आउटपुट मस्ट बी एडजस्टेबल डायरेक्ट वोल्टेज. अगर लोड हमारा डीसी मोटर है तो कन्वर्टर आउटपुट एक एडजस्टेबल डायरेक्ट वोल्टेज होना चाहिए. एंड इफ द लोड इज अ 3-phase इंडक्शन मोटर, द कन्वर्टर मे हैव एडजस्टेबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एट इट्स आउटपुट टर्मिनल्स. अगर लोड 3-phase इंडक्शन मोटर है तो कन्वर्टर कि आउटपुट टर्मिनल पर एडजस्टेबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. और जो फीडबैक नेटवर्क हमने लगाया था, द फीडबैक
component measures a parameter of the load and compare it with the command. तो फीडबैक कंपोनेंट लोड के पैरामीटर को मेजर करता है और इस पैरामीटर को कमांड के साथ में कंपेयर करता है। अब लोड जैसे हमने एक रोटेटिंग मशीन ली है, एक मोटर ली है, तो उसकी स्पीड क्या है उसको वो कमांड के साथ में कंपेयर करेगा। तो यहां पर हम हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड करते हैं। गुड बाय।